Studies by Preeti. Today we are going to do explanation of the French Revolution part 2. As in part 1 we covered up that how France became a constitutional monarchy. In this part, logically we will cover up the situations that occurred after that, and finally we will see the emergence of Napoleon and how he was sent to exile to St. Helena. He died there. These all will be covered up in this chapter. So be tuned and watch till end. And do subscribe to my channel if you like my videos. Link of part 1 is given in the description box. See that. In the first part, we saw about the old regime, which was the socio-political system that which existed in Europe during the 18th century, and we saw the classes of the people which were divided into privileged and unprivileged classes. Then we studied about the society under the old regime, that is first state, second state and third state, where the third state only paid all the taxes. These were the this is the data of the population and the privileges and exemptions that they were getting, where we can see that the third state, they didn't get any privilege nor any exemption. Rather, they had burden of the taxes. We studied with the help of a contemporary political cartoon that which told us about the conditions in France which were under the old regime. Then we studied about the economic conditions under the old regime. We studied how France was bankrupt, how Louis XVI lavished money on himself and residences like Versailles, his spendthrift wife Marie Antoinette. So this is the picture of the Palace of Versailles. She's Marie Antoinette. Then we studied that there were some long-term causes of the French Revolution. In the long-term causes, we studied about that absolutism. This all I have previously discussed. Only I am telling you the points. Unjust socio-political system which was during the old regime. The poor harvest which left peasants, farmers with little money for taxes. Influence of Enlightenment philosophers like Jean-Jacques Rousseau, John Locke. There were some other reasons also, like the system of mercantilism which restricted trade. Influence of other successful revolutions. England Glorious Revolution 1688-1689, which is also known as the Industrial Revolution. American Revolution, where France was only helping those American colonies to get independence from Britain. Then there were certain short-term causes of the French Revolution, that was bankruptcy, which was caused by deficit spending, financial ministers who proposed the changes, and then we studied about the Great Fear, that is the worst famine in the memory. Then we studied about the States General meeting, which was also the short-term cause of the French Revolution. Then we studied about the preparation of the States General, winter of 1788 to 89, members of the states elected representatives. Then we studied about the meeting of the States General, which was on May 5, 1789, and voting was conducted by state. First state, second state and third state, where the voting value of each was 1, and the third state, they proposed that voting should be as per person, not according to the state, which was rejected by the king. They walked out and they took the tennis court oath, where the third state, they declared themselves as National Assembly. Then look at the picture of the tennis court oath, which was being given by Jacques Louis David. Then we saw the 4 phases or the periods of the French Revolution. First, the National Assembly. Then in this video we will see about the Legislative Assembly, Convention and Directory. We have already covered up the National Assembly. We saw that Louis XVI, the king of France, he didn't wanted a written constitution, and when news of his plan to use military forces against the National Assembly reached Paris on July 14, 1789, people stormed Bastille, the fortress prison which stood for the despotic powers of the king. Now there were some uprisings in the Paris. The people of Paris, they seized
weapons from Bastille, and there were uprisings spread throughout France, which we all discussed in detail in my previous slides. Then we studied that what were the changes under the National Assembly. First of all, the abolishment of guilds and labor unions, abolition of special privileges which were given to the first two states, the Constitution of 1789, Declaration of the Rights of Man, equality before law, and we saw that many nobles, they left France and they became emigrants, the reforms in the local government, the tax levied was based on the ability to pay. This is the hall of the National Assembly in Paris. Now, then we studied about the Declaration of the Rights of Man, that is freedom of religion, freedom of speech, freedom of the press, guaranteed property rights, liberty, equality and fraternity, which was the slogan of the French Revolution, rights of the people to create laws, right to a fair trial. Then we studied about the end of some special privileges in the previous video. Then we studied about the Constitution of 1791. There were some democratic features. The democratic features of the Constitution of 1791 were that France, it became a limited monarchy. The king became merely the head of state. All laws were created by the Legislative Assembly. Feudalism was abolished. There were some undemocratic features of the Constitution, that is, voting was limited only to the taxpayers, that which I discussed in detail in my last video. Offices were reserved for property owners, and this new government became known as the Legislative Assembly. Now the new topic that which we are going to start in this chapter today is that how France abolishes monarchy and becomes a republic. So the situation, अगर हम फ्रांस की सिचुएशन की बात करें उस टाइम में, तो it continued to be tense during the following years also. लुई 16 ने कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन तो कर दिया था कि वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशंस विद द किंग ऑफ प्रशा एंड सम अदर नेबरिंग रूलर्स आल्सो हु वर ऑफ अदर कंट्रीज़, क्योंकि वो भी ये वरिड थे, जो फ्रांस में डेवलपमेंट हो रही थी उसको देख के वो वरिड थे, और उन्होंने ये प्लान करा कि वो अपने ट्रुप्स को भेजेंगे यहाँ पे, ताकि जो यहाँ पे जो भी इवेंट्स हैं उन पे रोक लगाई जा सके. तो अगर हम 1780 ये मींस कि 1789 के समर्स तक, तो जब इससे पहले कि ये होता, नेशनल असेंबली ने अप्रैल 92 में एक वोटिंग करा जिसमें ये कहा गया कि नेशनल असेंबली इट डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रशा एंड ऑस्ट्रिया. तो इसमें काफ़ी सारे वॉलंटियर्स थे जो who thronged from the provinces to join the army, and they saw this as a war of the people against kings and aristocracies all over the Europe. और इसमें उन्होंने एक पैट्रियोटिक सॉन्ग जो आप आज भी फ्रांस का नेशनल एंथम है, मैसलीज, को गाया. एंड this song, it was composed by Roger d'Ailly. It was composed by Roger d'Ailly, और ये पहली बार इन्हीं वॉलंटियर्स ने इस सॉन्ग को सिंग किया था जब वो पेरिस की तरफ मार्च कर रहे थे. एंड सो द सॉन्ग इट गॉट इट्स नेम, और मैसलीज, एज आई टोल्ड यू, इट इज़ द नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस. अब ये जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स थे उनकी वजह से काफ़ी सारा लॉस हो रहा था और इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी लोगों के ऊपर ना. जो मेन थे दे वर फाइटिंग एट द फ्रंट, और ये जो वुमेंस थी दे वर लेफ्ट टू द कोप विद द टास्क, मीन्स कि जो भी अर्निंग है लिविंग की और फैमिली की देखभाल, सब कुछ सारी जिम्मेदारी इट केम अपॉन टू द वुमेन. और जो लास्ट सेक्शन था पॉपुलेशन का, उनको ये कन्विंस किया गया कि ये जो रिवोल्यूशन है ये अभी और आगे चलेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 है ये पॉलिटिकल राइट्स केवल रिचर सेक्शन को ही दे रहा है सोसाइटी के. काफ़ी सारे पॉलिटिकल क्लब्स इस समय तक आते हैं, और ये लोगों क्लब्स आते हैं, और ये मीन्स कि इट बिकेम इम्पॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर पीपल जो ये विश कर रहे थे कि वो गवर्नमेंट के साथ पॉलिसीज़ एंड प्लान्स को डिस्कस करें इन ओन फॉर्म्स ऑफ एक्शन.
और इसमें से काफ़ी सारे सक्सेसफुल क्लब्स थे, जिसमें एक नाम था जैकोबिन क्लब का। जैकोबिन क्लब को अपना नाम फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकोब्स इन पेरिस से मिला था। एंड वुमेन टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, उन लोगों वुमेंस ने भी अपने क्लब इस समय तक बना लिए थे। और जो मेंबर्स थे जैकोबिन क्लब के, वो मेनली कम प्रॉस्परस फैमिलीज़ को या लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते थे, जिसमें कि स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिशियंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर्स और सर्वेंट्स और डेली वेज वर्कर्स आते थे। इनके लीडर का नेम था मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। और इनका जो लार्ज ग्रुप था इन जैकोबिन्स का, उन्होंने ये डिसाइड किया, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, दे डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स which was similar to those which were worn by the dock workers। and ये इसलिए इन्होंने किया ताकि वो अपने आप को जो फैशनेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उससे अलग दिखा सकें। स्पेशली नोबल्स को, ये बिरगोइस क्लास की ड्रेस को आप देखिए, जो ये नी ब्रीचेस पहने हुए हैं और इनसे डिफरेंट ड्रेस है सैंट क्लूटोज या जैकोबिन्स की। तो ये एक वे था प्रोक्लेम करने का कि जो पावर के एंड को प्रोक्लेम करने का, एंड विच वॉज wielded बाय द wearer ऑफ द नी ब्रीचेस। और ये जो जैकोबिन्स थे, दे केम टू बी नोन एज सैंस क्लूटोज। सैंस क्लूटोज इसलिए इनको कहा गया कि मीन्स दोज विदाउट नी ब्रीचेस, लिटरली इसका मीनिंग है दोज विदाउट नी ब्रीचेस। एंड सैंस क्लूटोज दे वर इन एडिशन, इसके साथ साथ वो रेड कैप को पहनते थे जो सिम्बलाइज करता था लिबर्टी। और वुमेंस को हाउएवर दे वर नॉट अलाउड टू वेयर सच ड्रेसेस। नाउ अगर हम समर की 1792 की बात करें तो जैकोबिन्स उन्होंने प्लान करा, दे प्लान एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पेरिशियंस who were angered by the short supplies और high prices of bread। और अगस्त 10 की मॉर्निंग में वो स्टॉर्म करते हैं पैलेस ऑफ ट्यूलरीज पे, और जो किंग के गार्ड्स थे उनको वो वहाँ पे किल कर देते हैं और किंग को काफ़ी सारे आवर्स के लिए होस्टेस हेल्ड करते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड जो लेटर ऑन जो असेंबली थी उसने ये वोट करा कि जो रॉयल फैमिली को इन लोगों ने इम्प्रिजन करने किया हुआ है उसको वो छोड़ दें। इलेक्शंस वर हेल्ड एंड अब से ये हो गया कि जो भी मैन अबव 20 ईयर्स एंड अबव हैं उनकी वेल्थ को नहीं देखा जाएगा। अब उनको ये राइट होगा कि वो वोट कर सकते हैं। और ये जो न्यूली इलेक्टेड असेंबली थी उसको कहा गया कन्वेंशन। एंड ऑन 21 सितंबर 1792 को इसने मोनार्की को एबॉलिश कर दिया और वहाँ पे और फ्रांस को एज अ रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। मीन्स कि रिपब्लिक मीन्स इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल दे इलेक्ट द गवर्नमेंट इवन इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पे कोई हेरिडेटरी मोनार्की नहीं रह गई थी। और लुई 16, here you can see the picture of Gallatin। तो लुई 16 को डेथ सेंटेंस दिया गया था कोर्ट के द्वारा बाय द चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन मीन्स कि अपनी ओन कंट्री के साथ धोखा करना, क्योंकि वो सीक्रेट नेगोशिएशंस में था और कंट्रीज़ के साथ अपनी कंट्री के खिलाफ कर रहा था मीन्स। और 21 जनवरी 1793 को इसको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है एट द प्लेस, द नेम ऑफ द प्लेस इज डी ला कॉनकोर्ड। एंड मैरी एंटोनियो के साथ भी सेम थिंग होता है, शी ऑल्सो वॉज एग्जीक्यूटेड। दिस इज द पिक्चर ऑफ मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर हु वॉज द हेड लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब। Now let's talk about the reign of terror। तो 1793 से लेके 94 तक का जो पीरियड है इट इज़ नोन एज द रेन ऑफ टेरर। रॉब्सपियर ने एक पॉलिसी फॉलो की थी सीवियर कंट्रोल और पनिशमेंट की। इसमें जो भी वो जिसको भी देखता था
कि दैट पर्सन इज़ लाइक एनिमी ऑफ द रिपब्लिक, जैसे कि नॉबल्स हो गए, जैसे कि एक्स नॉबल्स हो गए, क्लर्जी हो गए, और जो और पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर्स थे, अगर उसकी पार्टी का भी कोई उसके मेथड से अग्री नहीं करता था तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था और फिर उसको रिवोल्यूशनरी ट्रायल के सामने पेश किया जाता था। एंड अगर कोर्ट उसको गिल्टी फाइंड करती थी तो दैट पर्सन ही वॉज गिलेटिन। स्केलेटन एज आई शोड यू दैट ये एक डिवाइस होता है जिसमें 2 पोल्स होते हैं और एक ब्लेड होता है जिसमें कि एक पर्सन के हेड को बीच में रख के उसको काट दिया जाता है। एंड द पर्सन हु डिज़ाइंड दिस गिलेटिन, हिज नेम वाज डॉक्टर गिलेटिन, और डॉक्टर गिलेटिन के नेम पे ही इसका नाम गिलेटिन पड़ा था। रॉबस्पियर की जो गवर्नमेंट थी इसने कुछ लॉज इशू किए थे जिसमें कि मैक्सिमम सीलिंग लगा दी गई थी वेजेस और प्राइजेस पे। मीट और ब्रेड की रैशनिंग करा दी गई थी, यानी कि इनकी प्राइस फिक्स कर दी गई थी, इससे ज़्यादा इनकी प्राइस नहीं रखी जा सकती थी। जो पीजेंट्स थे अब उनको ये फोर्स किया गया कि वो अपने ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करें सिटीज़ में, और जो भी गवर्नमेंट प्राइसेस फिक्स कर रही है उन्हीं फिक्स प्राइसेस पे ही अपने ग्रेन्स को सेल करें। और काफ़ी एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर का यूज़ इट वाज फॉरबिडन, और ऑल सिटीजन्स दे वर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी एगलाइट मीन्स इक्वालिटी ब्रेड विच वॉज अ लोफ विच वॉज मेड ऑफ होल वीट, and equality it was also sought to be practiced through forms of speech and address, and ट्रेडिशनल जो मॉन्स्योर एंड मेडेम वर्ड्स को हटा दिया गया और सारे जो फ्रेंच वुमेन और मैन थे उनको सिटोइन एंड सिटोइनी के नेम से जाना गया, और जो चर्च थे दे वर शट डाउन, और जो उनकी बिल्डिंग्स थी उनको बैरिक्स में और ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। रॉबस्पियर he persuaded his policies so relentlessly that उसके जो सपोर्टर्स थे वो भी अब डिमांड करने लगे मॉडरेशन के लिए, और फाइनली रॉबस्पियर ही वॉज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड, और नेक्स्ट डे रॉबस्पियर को भी गिलेटिन कर दिया गया। कम्स द डायरेक्टरी। तो जब ये जैकोबिन गवर्नमेंट का फॉल ऑफ होता है तो इससे एक जो वेल्दियर मिडिल क्लास थी इट सीज द पावर, और एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें कि जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे उनके वोट्स को डिनाई किया गया, जो हम लोगों ने देखा था कन्वेंशन में जिनको राइट्स मिल गए थे। अब इन लोगों ने क्या करा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसने प्रोवाइड किया था 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी वो अपॉइंट करती थी डायरेक्टरी एंड एन एग्जीक्यूटिव विच वाज मेड ऑफ 5 मेंबर्स। डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स होते थे। मीन्स इसका मीनिंग ये होता था कि दैट इट वाज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर in one man executive as under the Jacobins. However ये जो डायरेक्टर्स थे वो ऑफन क्लैशिंग उनमें होती थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कि who then sought to dismiss them, और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी ऑफ द डायरेक्टरी it paved the way for the rise of a मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। और ये जो भी चेंजेस थे गवर्नमेंट के फॉर्म में, जैसे कि जो आइडल्स ऑफ फ्रीडम की बात हम कर लें, इक्वालिटी बिफोर द लॉ की बात कर लें, फ्रेटर्निटी, ये दीज ऑल रिमेन्ड इंस्पायरिंग आइडल्स विच मोटिवेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन फ्रांस एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप ड्यूरिंग द फॉलोइंग सेंचुरीज। अभी हम लोगों ने बात करी कि मीन्स कि नाउ क्या वुमेंस का भी एक रिवोल्यूशन हुआ था फ्रांस में। तो अगर इसकी बात हम करते हैं तो फ्रॉम द बिगनिंग इट वाज सीन दैट जो भी वुमेन थी वो वहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी फ्रांस में हर एक इवेंट में, जो कि इम्पॉर्टेंट चेंजेस लाए थे फ्रेंच सोसाइटी में। लेकिन उनको अब वो इसी होप से कर रही थी कि वो जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो प्रेशराइज़ करेगी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को, ताकि वो उन मेजर्स को इंट्रोड्यूस करे जो उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव कर देगा। लेकिन जो मोस्टली वुमेन थी थर्ड स्टेट की, उनको वर्क करना पड़ता था फॉर अ लिविंग,
और वो वर्क करती थी लाइक छोटे काम करती थी, जैसे कि सेम्स्ट्रेसेस का वर्क हो गया, लॉन्ड्रीज का वर्क हो गया, फ्लावर सेलिंग का वर्क हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सेलिंग का वर्क हो गया, या कभी कभी वो प्रॉस्परस फैमिलीज़ में एज दे यूज टू वर्क एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स ऑल्सो। और जो मोस्टली वुमेन थी उनको दे वर नॉट एजुकेटेड और ना ही उनके पास कोई जॉब ट्रेनिंग थी। जो डॉटर्स थी नोबल्स की या वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट की वो कॉन्वेंट्स में स्टडी करती थी, और आफ्टर दैट उनकी जो फैमिलीज़ होती थी वो उनके लिए मैरिज अरेंज करती थी। एंड दीज वर्किंग वुमेन दे ऑल्सो हैड टू टेक केयर ऑफ द फैमिलीज़, मीन्स की जो कुकिंग द फूड, fetching water, queuing up for the bread and looking after the children। और जो इनके जो वेजेस थे वो मेन से काफ़ी कम थे। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, ये जो वुमेन थी ये भी अपने पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर्स निकालने लगी। और 16 वुमेन क्लब्स दे केम अप इन फ्रेंच सिटीज़। तो और इनमें से जो सबसे फेमस थी वो थी द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। और इसमें से जो इनकी एक मेन डिमांड थी वो ये थी कि दैट these women they should also enjoy the same political rights as men, and these women they were disappointed कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है 1791 का उसने इन वुमेंस को कंसिडर किया था एज पैसिव सिटीजन्स। और दीज वुमेंस दे डिमांडेड द राइट टू वोट, to be elected to the assembly and to hold political office, and only when they felt that उनके जो interest हैं वो they should be represented in the new government। और अगर हम रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट की अर्ली ईयर्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ लॉज इंट्रोड्यूस किए में कि दैट विच इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ दीज वुमेन। और and together with the creation of the state schooling it was made compulsory for all the girls। अब जो उनके फादर्स थे वो उनको ये फोर्स नहीं कर सकते थे मैरिज के लिए उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। और मैरिज इट वॉज नाउ मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली, और इट शुड बी रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। डिवोर्स को लीगल बना दिया गया और ये लीगली अप्लाई होता था बोथ फॉर वुमेन एंड मेन। और जो वुमेन थी दे शुड नाउ बी ट्रेन फॉर जॉब्स, एंड उनको वो या तो आर्टिस्ट भी बन सकती थी और अपने स्मॉल बिजनेसेस शुरू करती थी। ये जो वुमेन के स्ट्रगल थे फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स वो बाद तक भी कंटिन्यू रहते हैं। और रेन ऑफ टेरर में एक ऐसा लॉ इशू किया गया था जिसमें ये ऑर्डर किया गया कि जितने भी वुमेंस क्लब हैं उनको क्लोज़ कर दिया जाए, उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे बैन लगा दिया जाए। और इसमें काफ़ी सारी जो प्रोमिनेंट वुमेन थी उनको अरेस्ट किया गया और काफ़ी वुमेंस को एग्जीक्यूट कर दिया गया। अब ये जो वुमेंस की मूवमेंट थी वोटिंग राइट्स की और इक्वल वेजेस की वो बाद के टाइम तक कंटिन्यू रहती है नियर अबाउट 200 years in many countries of the world, and the fight for the vote it was carried out through an international suffrage movement during the late 19th century and early 20th century। जैसे कि अगर हम पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन की बात करें तो during the revolutionary years it was kept alive as an inspiring memory। और फाइनली 1946 में वुमेन को फ्रांस में दे गॉट द राइट टू वोट। इनमें एक इम्पॉर्टेंट नेम है एक लेडी का हु वाज अ जर्नलिस्ट ओलंपे डी गॉस का। इन्होंने आर्ग्यू किया था कि जो डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन में ये कहा कि ये जो वुमेन है दे आर ऑल्सो इक्वल सिटीजन्स और उनको भी जो गवर्नमेंटल रिफॉर्म्स हैं उनका बेनिफिट मिलना चाहिए जैसे कि मेन को मिलता है। अब हम बात करते हैं अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी की। तो इसमें जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म था ऑफ द जैकोबिन रिज़ाइन वो था एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी इन फ्रेंच कॉलोनीज़। अब ये जो कॉलोनीज़ थी कैरेबियन में, सैन डोमिंगो में, काफ़ी इन प्लेसेस में वो इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स थी कुछ इम्पॉर्टेंट कमोडिटीज़ की जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफ़ी की। लेकिन जो यूरोपियंस थे वो वहाँ जाके वर्क नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो काफ़ी दूर की जगह थी एंड दे वर अनफेमिलियर लैंड्स। अब ये जो लैंड्स थे वहाँ पे क्या हो रहा था, शॉर्टेज हो रहा था लेबर का ऑन द प्लांटेशंस। तो अब ये जो
अब ये जो शॉर्टेज था, इस इन ऑर्डर टू मीट दिस शॉर्टेज, अब ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू होता है इन द 17th सेंचुरी। यहाँ पे जो फ्रेंच मर्चेंट्स थे वो के कुछ पोर्ट से सेल करते थे, जैसे कि बॉर्डेक्स और नैंटिस से टू अफ्रीकन कोस्ट पे। वहाँ से वो स्लेव्स को ले आते थे इन लोकल शिफ्टिंग से, और इन स्लेव्स की ब्रांडिंग की जाती थी और इनको सैक्स में बंद करके, बोरियों में बंद करके, उनको टाइटली पैक करके शिप में डाल दिया जाता था। और मंथ के वॉइस के बाद या एक लॉन्ग ट्रैवलिंग के बाद वो अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन वो प्लांटेशन ओनर्स को सेल कर दिए जाते थे। और ये जो ये जो स्लेव्स थे, इनसे काफ़ी लेबर कराया जाता था, और इनके हार्ड वर्क की वजह से ही जो यूरोप में डिमांड हो रही थी शुगर, कॉफ़ी और इंडिगो की, वो पूरी होती है। और जो पोर्ट सिटीज़ थे जैसे कि बॉर्डेक्स एंड नैंटिस, वो दे वोड देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ड्यू टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। अब हम अगर 18th सेंचुरी की बात करें तो उस समय तक काफ़ी कम क्रिटिसिज्म किया जाता था स्लेवरी का फ्रांस में, लेकिन जो नेशनल असेंबली थी तो वो काफ़ी लॉन्ग डिबेट्स इसके लिए कंसिडर करती थी कि अब ये जो राइट्स ऑफ मैन है उनको सारे फ्रेंच सब्जेक्ट्स के लिए एक्सटेंड करना चाहिए। अब जो कॉलोनीज़ में भी जो फ्रेंच सब्जेक्ट्स रह रहे हैं उनके ऊपर भी ये लागू होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई लॉज नहीं पास किए। और क्योंकि उनको ये फेयर था कि जो बिजनेसमैन है, जो इनकी इनकम मेनली स्लेव ट्रेड पे डिपेंड करती है, वो अपोज करेंगे। और फाइनली 1794 में कन्वेंशन ने ये लेजिस्लेट किया कि जितने भी स्लेव्स हैं उनको फ्री कर दिया जाना चाहिए, और जो भी फ्रेंच के ओवरसीज़ पोजीशंस में है। और ये एक शॉर्ट टर्म मेजर था, क्योंकि उसके बाद 10 इयर्स लेटर नेपोलियन ने दोबारा से इस स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया, और जो प्लांटेशन ओनर्स थे, नाउ दे अंडरस्टूड दैट देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव दीज अफ्रीकन नीग्रोज इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, और फाइनली स्लेवरी एबॉलिश होती है फ्रेंच कॉलोनीज़ में 1848 में। Now let's talk about Napoleon Bonaparte. नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में अपने आप को क्राउन करते हैं एज एम्परर ऑफ फ्रांस। Napoleon Bonaparte, he was born on the Isle of Corsica in 1769, and from there he was exiled to St. Helena in 1815. Let's see the time period between that. At the 9, the parents of Napoleon Bonaparte, he sent him to the military school